Hello and welcome everyone to another live review session with us. Uh, this live review session is presented by Click Academy and the name is Sets of Creation. Today we'll be reviewing modeling which started this month first. So today is our first modeling review, first WIP review. Uh, Unfortunately, today our modeling mentor Kasturi is not there with us, but we have our surfacing mentor Dev Gopal Das with us. So today he'll be giving all the reviews of all the submissions. Okay, so before handling over to the Dev Gopal Das, let me talk about something sets of creation. What is sets of creation? So sets of creation is an open contest. For everyone throughout the world, and it's completely free to join. Anybody from anywhere can join, and this competition is all about reviewing your work and getting your work to the next level and getting it reviewed by industry professional. So you can review your work with industry professional and get that feedback on your work. Okay. And this sets of creation is presented by Click Academy, which is an online animation institute located in Kolkata, but it provides you courses uh, in online only, and it can provide you courses all the department in animation, VFX, and gaming, and various department of animation. Okay. So let me handle over it to Dev Gopal Das. So he'll be reviewing. Dev Gopal Das, hello. Your mic is off, I think, Dev Gopal Das. Yeah, Yeah, hello Dev sorry, Gopal. it's Good. a common mistake. Yeah, yeah. Yeah, So, yeah. Okay. So you can yeah, share your screen and you can continue with the review. sure, sure. Thank you. Yeah. So it's all about sets of questions. I'm starting with modeling review today. So December contest sets of creation modeling review part. So it's a first review on December sets of creation. And so I'm sharing my screen. Uh, Thank you for participation, whoever uh, participate in this contest. So thank you and hope we'll get more participations on final review. So I'm reviewing today whatever the participants with us. So I'm presenting my screen. Okay. Uh, yeah, it's visible. It's loading. Now it's visible. Yes, yes, you can continue. Okay. So सायन सहा सायन सहा तुम हो क्या? ऐसा मैं अच्छी से ओके ओके तो मैं आपका फाइल रिव्यू कर रहा हूँ. हमारा कॉन्टेस्ट का फाइल रेफरेंस ये था. तो ये एक कार्टूनी कैरेक्टर है, एक ब्लूप्रिंट फॉर कार्टूनी कैरेक्टर. द फ्रंट व्यू एंड द नेक्स्ट व्यू इज दिस साइड व्यू. तो ये दो व्यू है, साइड एंड फ्रंट. ये दिया गया था दिसंबर सेट्स ऑफ क्रिएशंस के लिए. तो साइन बिसस है हमारे साथ. फास्ट इनका मॉडल चेक करेंगे. ये मॉडल राइट हाँ साइन. सर हाँ हाँ ओके. तो ये आपने बॉक्स से किया, बॉक्स मॉडलिंग है. यस सर हेलो. हाँ ओके ओके ठीक है. तो ये देखो, जब मैं थ्री प्रेस कर रहा हूँ या इसका मेस देखेंगे, इसके नॉर्मल ये ब्लैक इसीलिए दिख रहा है. ये फेस, हर एक फेस का एक नॉर्मल होता है. नॉर्मल मतलब उसके डायरेक्शन फेस है. एक एक साइड जो फ्रंट कैमरा को फेस करता है और जो रिवर्स फ्लिप कैमरा होता है वो एक होता है. तो ये रिवर्स पॉलीगन की रिवर्स फेस है, रिवर्स साइड है. तो इसको रिवर्स करना पड़ता है तो जाके अच्छे दिखेगा. और ये WIP है एवं ये मतलब बहुत ही एक अच्छे शेप पे है, क्योंकि इसका शेप सही आया है.
तो अभी इसका सर्च या दूसरे पार्ट डिफरेंशिएट नहीं है, सेपरेट करके अलग से बनाया नहीं है, तो ये सब होगा आई थिंक। तो ये WIP पास है। एंड एनाटॉमी वाइज से साइड व्यू थोड़ा बहुत ये जो है इसकी स्पाइन यहाँ से खत्म होता है, ये हिप और इधर से लेग का नी पोर्शन। तो ये ड्रेस के ऊपर हम इनसाइड जो पार्ट है वो कैसा है वो हमको ध्यान में रखना है, उसके ऊपर शर्ट हो ऐसा सोच रख के होना चाहिए। तो ऑब्वियसली यहाँ मैं हाँ सोच रहा हूँ कि इस शर्ट को अलग से बनाऊं। हाँ 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 अलग से ही बनाना पड़ेगा, लेकिन ये जो है ये थोड़ा चेक करके उसका एनाटॉमी ओवरऑल अच्छा है। और जैसे तुमने ये वाला पोर्शन, ये बहुत ही लो पॉली है, लो पॉली मतलब कम पॉलीगन्स हैं इसमें, तो आप इससे बढ़ा सकते हो, ज्यादा चलेगा। और इसमें ये जो लूप है ना, ये लूप बहुत ही कम है, क्योंकि इसमें तो लूप फिक्स नहीं कर सकते। ये वाला लूप आई पोर्शन की ये जो कंटिन्यू हो रहा है, ओनली एक ठीक है, तो बाकी भी होना चाहिए 2-3 लूप। तो ये ज्यादा मिस होगा तो रिव्यू करने में मतलब प्रॉपर होगा वो लूप। और ये लिप्स का भी, तो ये एक्चुअली रिग होने वाला है, तो अब रिग होगा तो सडनली ये पोर्शन से पिंच ना होके कहीं दूर होना चाहिए थोड़ा। तो ये लूप कंटिन्यू हो गया ऐसे ज्यादा पार्ट, ये सब है प्राइमरी। तो इस पे इतने कम में ठीक है, ये भी हो सकते, लेकिन ये बहुत ही कम में है। ये जॉइंट्स में ज्यादा सेगमेंट होना चाहिए, क्योंकि रिग में फोल्ड होता है। और जब मॉडल करते हैं तो थोड़ा थोड़ा जस्ट बेंड रख सकते हैं, क्योंकि वो मॉडलिंग में इजी होता है। और शूज ये सब अलग से ही बनाना है सेपरेट। चाहे आप पहले तो कंबाइन बनाने के बाद सेपरेट कर सकते हैं इसको शेप मॉडिफाई करने के लिए, लेकिन इसको सेपरेट करना ही है। ओवरऑल ठीक है। और ये जो स्पेयर है इसके अकॉर्डिंगली इसके आई बॉल्स देखेंगे तो ये एकदम कॉर्नर पे हो रहा है, ऐसे हो रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, आई बॉल पहले सेट करना है, उसके ऊपर उसका जो आईलिड का कर्व जो है वो सही से बनाना है। अब अगर टॉप ये देखो बहुत फ्लैट है, अगर स्पेयर के ऊपर से आएगा ना तो वो टॉप व्यू पे भी वो वैसे राउंड कर्व मिलेगा। एंड नोज पे भी थोड़ा डिटेल होना चाहिए, जैसे नोज तो ऐसा ही है, लेकिन ये नोज अंदर है, तो ये वाला टिप पॉइंट थोड़ा आगे आएगा ऊपर, एंड नीचे डिटेलिंग रहेगा उसके जो नॉस्ट्रल मतलब होल्स है नाक का, वो भी इधर होगा। तो ये प्रॉपर शेप बनेगा तो वो उसका डिटेलिंग आएगा। तो आई थिंक यू हैव टू वर्क ऑन कट फ्लो फर्स्ट, and secondly these curves of eyelid and the nose little bit, it's very low poly, you have to make it little mid poly so that you can easily get the volumes, and here also. But you have in limited volume, you have all the volume informations. Anatomy is also not bad, but yeah, way more to go. So you have to separately make these parts and make more detail as much as you can. Oh, that's it. And yes, these joints parts you should keep
more edges, means polygons here also, so that the joints portion can be rigged and movement will be smooth. And this here also, मतलब ये एरिया जो जॉइंट्स है, उंगलियां भी बेंड होने वाले हैं, तो ये भी ज्यादा रहेगा. और इस पे नाखून के भी डिटेल हम बना सकते हैं वेरी लो पॉली पे. उसके बाद हम जो स्कल्पिंग सॉफ्टवेयर में उसको डिटेल डाल सकते हैं, पर बेस पे हम नाखून डाल सकते हैं. ओके. और नेक पे भी सेगमेंट्स होना चाहिए, है ना. तो इतना ही है, ये एनाटॉमी वाइज थोड़ा बहुत ठीक है, और भी इस पे काम करना है और डिटेलिंग पे काम करना है. फेस पार्ट बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि ये अंदर होल है. उसकी जो लिप्स की डिफाइन नहीं हो रहा है लिप्स. हालांकि लिप्स ऐसा है, स्मॉल है, पर फिर भी उसकी एक शेप होगा. मैं दिखाऊं फिर. आई थिंक देवगोपाल वॉल्यूम सबका मिल रहा है, बट आई थिंक डेप्थ बनाना है एक्स्ट्रा कटर. हाँ 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 हाँ. और जो शेप्स जैसे लिप्स का भी, मतलब इसके बहुत थिन लिप्स है, पर वो शेप होना चाहिए. जो ये डाउन पार्ट से थोड़ा अप होता है, वो पार्ट की डिटेलिंग. आई थिंक ओनली माउथ पोर्शन दिख रहा है, लिप पोर्शन नहीं दिख रहा है. लिप बनाना है, लिप्स बनाना है. हाँ हाँ हाँ. तो थोड़ा पहले एक्सट्रूड होके पहले बाहर आएगा, फिर जाके अंदर अंदर जाके होल बनेगा. और वो क्लोज ओके रहेगा, सर. मतलब शेप थिन रहेगा, पर उसकी लिप्स की डिटेल लाना चाहिए. हाँ. और ये जो है, ये आप इसकी रिवर्स कर दोगे तो देखा चला गया. ओके. आई थिंक मुझे ओवरऑल फेस से अच्छा हेयर का मॉडलिंग बहुत अच्छा लग रहा है. हेयर प्रॉपर है. आई थिंक लोग बोले थे वॉल्यूम कि है. हेयर बहुत अच्छा लग रहा है. और ऐसे देखना है हमको, क्योंकि ये जो ऐसे हर व्यू पे देखना है. यहाँ देखेंगे तो ये शेप, ये कंधे की शेप नहीं आ रहा है ना, और थिन थोड़ा लग रहा है. तो यहाँ पे कंधे का पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा थिक होगा, फिर ये एरिया पे ऐसे वॉल्यूम निकलेगा थोड़ा. तो है, और भी काम है इसमें. ये देखो, ये बहुत थिन लग रहा है, और कंधे का पोर्शन ऐसे फ्लैट जा रहा है. हमारे शोल्डर है ना, आई शोल्डर थिंक से. शोल्डर थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए, राइट. हाँ. एंड शोल्डर की पॉली ये भी, मतलब जॉइंट्स भी वो डिफाइन होना है, और लूप्स रहना है. ये ब्लॉकिंग मैं बोल सकता हूँ, बहुत ही अच्छा है ब्लॉकिंग. इसके ऊपर और भी मिड पॉली बनाओ, और जो एकदम हर एक पार्ट के लिए जो वॉल्यूम होना है, वो मिड पॉली से ही वो आएगा. तो उसको अच्छे से डिटेल करना है. अगर कहीं पे पिंच आ जाए, जैसे कुछ एरिया पे पिंच है, कुछ है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी है स्कल्प जियोमेट्री टूल. ठीक है. अब मिड पॉली करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, स्मूथ हो जाएगा. आई थिंक देखो, पेंट करने के पहले और थोड़ा कट फ्लो ऐड करने की जरूरत है ना, राइट. हाँ, राइट. कट फ्लो वही बोल रहा हूँ, क्योंकि आप शेप के लिए इसके ऊपर स्मूथ ये करके, मतलब पहले तो जॉइंट्स ठीक करना है. जॉइंट्स में कट देना है, जैसे आप ब्लॉकिंग बनाया उस पे करने के बाद, अगर ये बहुत ही लो पॉली है, एक लेवल स्मूथ देने से आपका ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. हाँ, ठीक है, तो आप कर सकते हो. लेकिन पहले इसकी लूप्स प्रॉपर करने के बाद, थोड़ा बहुत शेप होने के बाद, इसके शेप और डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एल्बो, पैर का. और ये सब तो सेपरेट होगा ही,
पर ये एनाटॉमी वाइज एक मतलब ऐसा दिखाई दे कि अ, इसकी ये बॉडी है, इसकी स्पाइन है, थोड़ा अंदर गया, शर्ट यहाँ से ही सीधा आएगा लेकिन अंदर ऐसे आएगा, फिर इसकी हिप पोर्शन ऐसे आएंगे, तो ये एक विजुअली होने के बाद इसके ऊपर ड्रेस पहना है तो प्रोपोर्शन सही लगेगा, जो कि आपकी ठीक है, लेकिन और जो पार्टिसिपेंट्स है तो उनका मैं देखा था थोड़ा ऑफ जा रहा है। आई थिंक फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू पहले रेफरेंस से मैच करने के बाद आई थिंक फिर पर्सपेक्टिव व्यू पे काम करना चाहिए। हाँ हाँ फ्रंट व्यू साइड व्यू मैच करने के बाद भी पर्सपेक्टिव पे आके फ्लैट लगता है। जैसे हाँ देवगोपाल हाँ आईज का बोल रहा था, आईज मे बी मैचिंग विद द फ्रंट व्यू एंड द साइड व्यू, बट हाँ इट्स लैकिंग द डेप्थ। फ्लैट, हाँ क्योंकि ये वाला पोर्शन है वॉल्यूम हाँ, क्योंकि आगे उधर आएगा। आईब्रो का डिटेल, आईलिड का डिटेल सब कुछ हाँ बना है। एंड नाक के अराउंड वो जो नाक के ऊपर वाला पोर्शन है वो थोड़ा अंदर जाएगा ताकि वो आईज का डेप्थ मिले। एंड ये पेंटागन है, ये सब ध्यान रखना है, इस एरिया पे ऐसे नहीं चलेगा। तो हाँ, ये तो ओवरऑल ये गुड। होने वाला है ना। आई थिंक रेक करने के लिए हम लोग पेंटागन तो नहीं चाहिए उधर, हाँ पॉलीगन ही रखना है प्रॉपरली। एंड आईज ओवरऑल गुड स्टार्ट। आईज का जो कट है वो राउंड राउंड होना चाहिए। आई थिंक हम लोग रेक पे आईज को अलग मूवमेंट करते हैं, नोज को अलग मूवमेंट करते हैं, फिर माउथ को अलग मूवमेंट करते हैं, तो इसीलिए हम लोग एक राउंड लूप रखते हैं सबके लिए। तो इसीलिए पहले तो राउंड लूप बना के फिर जाके हम लोग डिटेलिंग ऐड करते हैं। तो आई थिंक हाँ आईज पे और नोज पे एंड माउथ पे पहले तो और भी कट फ्लो ऐड करना पड़ेगा। हाँ, और ये जो राउंड है ना, फिर स्पेयर की जो राउंड फेस है, वो एग्जैक्टली कौन से एरिया पे है वो उस जगह पे ही रखना है। आई थिंक देवगोपाल थोड़ा रोटेट करके दिखा दो एक बार। हाँ हाँ हाँ, ऐसे। अब जाके वो आईज का डायरेक्शन ठीक है। अब इसके ऊपर इसकी कॉर्नर डिसाइड होगा कि कौन से एरिया पे आईबॉल की कॉर्नर होगा, मतलब आई लीड का, सॉरी, कॉर्नर भी अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो ये सब चेक करना है, और ये हार्ड लाइन अभी नहीं चाहिए, वो लीड जो बनेगा वो प्रॉपरली बनेगा तो फिर ये हार्ड लाइन तब हम सही से दे सकते हैं। एनीवेज गुड स्टार्ट। और जो मैंने कमेंट्स दिया है वो थोड़ा फॉलो करके, जैसे जॉइंट्स में लूप्स, पहले तो लूप सही से जॉइंट्स में पहले आर्म डिफाइन करना है, फिर जॉइंट्स पे कट होना चाहिए, और ये नाखून हम बना सकते हैं थोड़ा बहुत, देखो। और आई बॉल पहले तो, हाँ फर्स्ट जैसे हावी बोला कि आई बॉल का पोजीशन और लूप्स सही होना चाहिए, और लिप्स का, ये दो वैल्यू इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट। देन ये जॉइंट्स के लूप के बारे में देखना है, फिर तो डिटेल आगे आगे होगा, सेपरेटली शूज करेंगे और शर्ट करेंगे, उस पर जितना हम डिटेल डाल सकते हैं, पर ऐसा लगे कि ये बॉडी के ऊपर ही वो शर्ट है, ऐसा ये जस्ट ध्यान पे रखना है, बस दैट्स ऑल। शायन, होप यू गेट इट, ओके सर। समझ में है ना? हाँ सर। ओके ओके। नेक्स्ट सपनील। देखो बोलो, यस शायद सर। कोई प्रॉब्लम हुआ था स्टार्ट करने में, या कुछ तुम्हारा कोई क्वेश्चन रहेगा तो एक बार पूछ सकते हो। शायद शायद कोई क्वेश्चन है क्या तुम्हारा? आई थिंक देवगोपाल कंटिन्यू विद द अदर रिव्यू।
ओके okay, sorry. So here it is. Sapnil. Sapnil, sir. Hello. I think they go Yes, first sir. assign one Lambert. Yeah. Oh, that is too much polygon. Uh, actually, what he made, this is good kind of mid-level polycount, but this is huge. I don't know why he kept, but অ্যাকচুয়ালি স্যার ওটা ওটা ভেবেছিলাম যে স্কাল্প করে 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 করো এখানে okay. এটা মানে ছোট ছোট করে মানে কম রাখলে ওটা কাজ হবে না মানে কেমন পয়েন্টি পয়েন্টি হয়ে যায় ওই জন্য ওটা একবারে আই করে থিঙ্ক তারপরে স্কাল্প উঠাচ্ছি করার জন্য এতটা পলিগনও প্রথমে দরকার নেই। আই থিঙ্ক পরে আমরা স্মুথ অ্যাড করতে পারি। স্কাল্প করার জন্য এত পলিগনও দরকার নেই। আচ্ছা আই থিঙ্ক ক্যারেক্টারটা আমাদের কার্টুন ক্যারেক্টার, তুমি যদি হেয়ারটাতে এটা এখনো করা হয়নি আমার অ্যাকচুয়ালি এত পলিগন দিয়ে বুঝতে দাও পারছিলাম না প্রথমে, কেমন করবো হেয়ারটাতে প্রথমে অত পলিগন দিয়ে দিলে তাহলে তোমার হয়ে যাবে অনেক। অ্যাকচুয়ালি তুমি খুব স্মুথ লেভেল থেকে ভাবছো, ব্লকিং লেভেলে, ওই জন্য আমি দেখলাম ওই মোজার কাছে এইভাবে তুমি করেছো। হুম বাট এরকম নয়, আমরা এই সাকসেস যে রিঙ্কেল সেটা আমরা টেক্সচারিং এ অ্যাচিভ করতে পারি। আচ্ছা এটা তোমরা আই থিঙ্ক সেপারেটলি এত পলিগন দিয়ে চালু করলে পরে তুমি রিগই করতে পারবে না, কারণ ওখানে তোমার বেন্ডিং হবে, প্যার বেন্ডিং হবে। ওখানে তোমাদের ফুটের যখন কন্ট্রোলার অ্যাড করবে তখন এত পলিগন হুম থাকলে ওটা রিগ করতে পারবে না। ওই জন্য আচ্ছা ছোট আচ্ছা ছোট ডিটেল গুলো আমরা পরে অ্যাজ এ ডিসপ্লেসমেন্ট পাস ইউজ করি, বা পরে আমরা হুম টেক্সচারিং এ ইউজ করে দিই। আচ্ছা হ্যাঁ, আর যদি করতেও হয়, অবভিয়াসলি তুমি বানাতে পারো, মডেলিং এ বানাতে পারো, বাট প্রথমে আগে পুরো বডি কন্ট্রোল করে নাও। তো প্রথমে বেসিক লেভেল থেকে ভাবো, তারপরে তুমি অ্যাডভান্স লেভেলে যাও। হুম ঠিক আছে তো ফার্স্ট পয়েন্ট এটাই, যেটা তোমার আই বল যেটা আমি কমেন্ট দিলাম শাইনকেও, তোমার ক্ষেত্রেও দেয়, কারণ आई बॉल पॉइंट पोजीशनটা आगे डिसाइड करता है, तो फिर इसके ऊपर आईलिड आएगा कि किधर इसकी। और मेन बात है, आपने ये आईलिड को स्क्वीज किया तो इसका जो शेप है, ये राउंड वाला शेप, হুম ये चला गया। আচ্ছা ये अभी ऐसा है। अपना जो आई बॉल रहता है वो हमेशा स्फीयर रहता है। वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या मेल हो फीमेल हो, कभी भी इसका शेप सेम ही रहता है, तो प्रॉपरली स्फीयर ही रहता है। हम लोग रिग रिग पे उसका स्क्वाश कर सकते हैं। स्क्वाश ऐड कर सकते हैं, बट मॉडलिंग पे हम लोग कभी भी उसको ऐसा ये नहीं करते, शेप नहीं देते। वो प्रॉपरली राउंड अच्छा ही रहता है। ओके सर और रिग पे अलग जगह कुछ चेंज हो तो अलग बात है, शायद वो बहुत टाइप की से है, कैरेक्टर बहुत टाइप का बन सकता है, लेकिन हाँ जैसे बोले कि रिग पे वो हो सकता है, लेकिन ये ऐसे डिफॉल्ट पोजीशन पे वो राउंड ही है, वो ऐसे राउंड है, तो ये चेंज नहीं करना चाहिए, और इसका पोजीशन पहले ठीक करो, तो फिर ये आई लीड हम बना पाएंगे। जैसे ये लूप ठीक है, পজিশনটা কি করব এখানে पोजीशन जैसे ये है ना, হুম ये ऐसे होना चाहिए, जैसे आपने पहले तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, एक्सपेयर लेना पड़ेगा, ओके। ये आपके आईबल है, আচ্ছা मतलब कैरेक्टर का। হুম হুম अब इसके ऊपर शेप बनाना है सही से, ठीक है। ওকে तो
तो ये कैसे बनेगा? ओके, ये भी ठीक नहीं है एक्चुअली। जब लीड सही से आएगा ना, मैं ऐसे रफली दिखाया। मैंने अभी तक लीड किया नहीं है कल। हाँ। मेरे तो और ऑब्वियसली हाँ मेरा और एक प्रॉब्लम है जो मैं एनाटॉमी समझ नहीं सकता हूँ ठीक से। हाँ, क्योंकि मैंने ये बोला, देखो जैसे ये वाला पार्ट है, हम्म ये ऐसे जा रहा है, ये लाइन ऐसे शेप ले हिप्स वाला, तो ये अंदर जा रहा है ना। एक्चुअली क्या है, साइड पे देखेंगे तो ऐसा है, ये हिप्स की बात मतलब, है ना। और इधर ये नी है ना, नी पोर्शन। तो ये मैंने अगर दिखाना है जल्दी तो मैं दिखाता हूँ एक। ये एक रफली मैं दिखा रहा हूँ कि इसके साइड जो शेप है, ये नी है, तो ये वाला ऐसे शेप होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारा कैसा है, ये ऐसे होके इधर से ही उसका शेप जो है, इधर से डाउन, ये कॉर्नर नहीं बनना चाहिए था, ये कॉर्नर नहीं बनना चाहिए था। ऐसे ही शेप कंटिन्यू होके फिर हिप का जो शेप होना चाहिए था, है ना, ये वाला ऐसे। ये जो शर्ट है ये थोड़ा ऊपर जाके आया, वो ठीक है, लेकिन ये इधर कॉर्नर नहीं बनाएगा, ये शर्ट का पार्ट है, इसीलिए इनसाइड एनाटॉमी को ठीक रखना था। और सेकंड बात है कि ये जो नेक है, नेक हेड से कंटिन्यू है बैक साइड का, इधर लाइन है लेकिन बैक साइड पे कंटिन्यू है स्मूथ। तो आपका कैसा है, आपने ऐसे कट रखा है ना, ये वाला जो है ऐसे थोड़ा बेंड होगा लेकिन एक कट नहीं रहेगा। तो ऐसे होना चाहिए। ओके ठीक है। ठीक है। और गले के बीच एक थोड़ा सा अप डाउन रहते हैं, वो भी देखना है। पर ओवरऑल शेप अच्छा है, मतलब मिड पॉली है, कम से कम शर्ट अलग किया आपने। और जैसे मैंने शाइन कभी बोला, ये जॉइंट्स पे आपको और कट रखना है फोल्ड के लिए, इधर भी सेम है। और आपकी जो हैंड है, मतलब ऊपर का पार्ट, इसके वॉल्यूम डिफाइन नहीं हो रहा है, ये वाला इधर लाइन नहीं होगा, स्मूथली ऊपर जाएगा, ऐसे हाथ में जैसा रखता है ये वाला फ्रंट है ना, ये कर्व ऊपर, देन उंगली थोड़ा सा छोटा होता है, ये वाला थोड़ा थिक होता है। तो कंपेयर, ये पूरा लाइन दिख रहा है एक बॉक्स जैसा, और वो शेप डिफाइन होना चाहिए थोड़ा सा, है ना।
ठीक है। और ये वाला जो है इधर भी डाउन नहीं होना चाहिए, इधर होगा लेकिन इस साइड नहीं होगा। और इधर ये नाखून होना चाहिए, फिर लाइंस होना चाहिए, वो सब होगा आई थिंक लेटर। और ये वाला पार्ट भी सही से बनाना है। ओके ओके सर। तो ये प्रोफाइल लाइन ये होगा ऐसे, जैसे ये भी है थोड़ा बेंड रखना, ऐसे नी वाला पार्ट आएगा, फिर ये थोड़ा बेंड होगा, ये सब है। लिप्स का, लिप्स ठीक है, लिप्स ठीक है। पॉइंट भी शायद इधर ही आएगा, लेकिन ये वाला जो पिंच है इसको थोड़ा इधर दूर रख सकते हैं, क्योंकि ब्लेंड शेप्स होते हैं ना कैरेक्टर के। तो ये इधर तक माउथ इधर जाए, इधर तक एक्सट्रीम और उसके ब्लेंड शेप्स। স্যার বলছি চুলগুলো কেমন বানাবো একটু বলতে পারবেন? চুলগুলো বানাতে প্রবলেম হচ্ছিল আমার। চুলগুলো লোকালি বানাও, जैसे যেরকম বক্স করে, आई थिंक चूल मतलब इसका बेस शेप बना लो, ठीक है। फिर उसको हम बाद में जी ब्रश पे डिटेल करके या किधर और डिटेल करके तो कर सकते हैं। मैं बताता हूँ एक सिंपली, ये तो क्लास नहीं है रिव्यू, फिर भी मैंने जितना जल्दी इजीली दिखाना हो पाए मैं वो दिखा देता हूँ। ओके सर। ठीक है, ये ऐसे स्केल है और ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, अब ये बन गया। फिर हम एक एक करके कट करेंगे और उसको जैसे शेप होना चाहिए। हाँ हाँ, तो ऐसे लो पॉली पे बनाओ। मैं बताता हूँ और एक बार, मतलब जैसे आप कट्स की बात कर रहे हो ना, मैं वो बताता हूँ। ठीक है, और इधर कट चाहिए तो कट ले लो और इसको अंदर पुल कर दो। ठीक है, अच्छा हाँ, मतलब एक रफ बता रहा हूँ मैं, पर ऐसा हो सकता है। फिर कट भी एडजस्ट करके करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। सर। तो ऐसे हम बना सकते हैं, नेसेसरी नहीं कि बहुत हाई पॉली कर दें, फिर उसको कंटेंट इतना हाई पॉली तो नहीं होना चाहिए, कम से कम जो आपने देखा है। ठीक है, ये पॉलीगन ठीक है, इससे थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। और कार्टूनी कैरेक्टर में, ऐसे स्मूथ कैरेक्टर में सर उसका वॉल्यूम भी रहेगा और स्मूथ भी होगा और शेप हर एक चीज मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये स्मूथ शेप स्मूथ से बहुत इजी है, तो इसमें कट फ्लो वैसे ही आएगा जैसे मैंने बोला। एक कैरेक्टर का ये एरिया पे एक होल जैसा होता है, लिप्स के अंदर होल्स नहीं, मतलब एक बहुत अच्छा शेप आता है इस एरिया पे, जस्ट माउथ के।
सर हाँ हाँ डिम्पल्स सराउंडिंग्स, हम्म, तो वो भी लाना है। तो EMS से आएगा कि उसकी फ्लो कट फ्लो और अच्छा करना है तो आएगा। जैसे लीड्स भी ऊपर से आएगा तो ये इधर तक होगा, फिर इसके ऊपर थोड़ा लीड्स की पोर्शन जैसे होता है ऐसे वो आएगा। अ, जैसे ये फोरहेड हुआ थोड़ा डाउन है, फिर लीड का पोर्शन होगा। और दो लीड के साइड पे कॉर्नर बनता है, हाँ हाँ तो उस एरिया से वो लिड डिफॉर्म होता है और रिग में यूज होता है, तो वो भी पार्ट देखना है एक्चुअली। अच्छा उधर लूप्स भी मेंटेन करना है, तो लूप्स और भी बढ़ेंगे, लेकिन ये मिड पॉली ये लेवल ठीक है, इससे थोड़ा बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, तो साइन को और थोड़ा मिड लूप्स डालने पड़ेंगे, पर ओवरऑल शेप ठीक है। ये जैसे चिन इसका डिफाइन नहीं हुआ, चिन का भी करेंगे, चिन वाला पार्ट। हम्म, तो यही सब है, ध्यान पे रखते हुए अच्छा आगे करो तो फिर अच्छा होगा। और ये सेपरेटली करना, पैंट से सेपरेट सॉक्स करो, और ये ओके सिलेंडर रखो पहले चलेगा, बाद में इसको हम ये जो आपका ये डिटेल है वो टेक्सचर्स में आ जाएगा, या तो बाद में डिटेल करेंगे। सेपरेटली करेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर भी डालना नहीं पड़ेगा, वो स्मूथ हम बना सकते हैं मॉडल पे, सर लेकिन नॉट आईब्रो नेसेसरी की हो। आईब्रो का भी का टेक्सचर में करेंगे और नहीं नहीं, आईब्रो जो है उसकी वॉल्यूम होना चाहिए। टेक्सचर में क्या रहेगा, टेक्सचर डिटेल रहेगा, लेकिन वॉल्यूम नहीं होगा तो लाइट में क्या दिखेगा और कैरेक्टर यूज क्या होगा, क्योंकि वो कैरेक्टर रिग्ड होने वाला है और उसकी प्रॉपर शेप होना चाहिए। इसीलिए मॉडलिंग के हर एक चीज प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत जो माइक्रो डिटेल है, जो छोटा छोटा डिटेल है, वो टेक्सचर में अचीव हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल दोनों का ही शेप अच्छा लगा WIP से। और इनिशियली जब आप कैरेक्टर सीखते हो तो ये गुड क्वालिटी अचीवमेंट है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक कैरेक्टर परफेक्ट होने के लिए, एक कैरेक्टर अप टू द प्रोडक्शन होने के लिए जो जो रिक्वायर्ड है उसमें बहुत कुछ काम करना है। सो ये सभी व्यू है जो आपको ध्यान में रखना है और उसको और एनहांस करना है। सो थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन, बट ये पॉइंट्स ध्यान पे रखते हुए फाइनल पे एक अच्छा आई थिंक मॉडल आएगा। सो कीप अप द गुड वर्क, अच्छा काम करते रहो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। और कुछ क्वेरीज? नहीं सर, कोई नहीं, कुछ नहीं। ओके, so Habib, I'm come to the end. I think review is done. Okay. So this was the two submission, right? Yes, we got 2 submissions Okay. for first review. Then I think we can end here. It's already time 12:56. So thank you everyone for your participation, and I hope in final version you'll get more participation and updated version from this. So both participants want to say that whatever Dev Gopal said, please follow that, and please keep in mind that that character need to be rigged. So you need to follow ओके the सर, proper topology. Okay, Yes, and follow some reference, internet reference also how the cut flow works. So it will be better for your understanding. You can search in Google image, so you'll get some good example of topology, face topology, so you can follow those. It doesn't matter it is cartoony character or real character, the topology is almost same, because in cartoon character also you need to do the same rigging as real character only, so you need to follow the same topology. The shape will be different, but the cut flow it same only as real characters. Okay. Okay, I think Devgopal, that's it. We can end it here. yes. So, thank you everyone. Yeah, thank you all. Thanks, Habib. Yes, thank you Devgopal. Bye Okay, bye. bye. बाय सर।